بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ دونوں بستر پر لیٹ گئے۔ مرینا نے کہا، صبح تک گہری نیند میں رہو گے تو کسی کو قربت کی آنچ اور جوانی کے جذبے نہیں ستائیں گے۔ آنکھیں بند کر لو۔ دونوں نے ایک دوسرے کو حسرت سے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مرینا نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے پہلے حمائلہ کو سلایا۔ وارنر اپنے دماغ کو ہدایات دے کر سونے کا عادی تھا، مگر آج اس کا معمول تھا۔ اپنی مرضی سے سو سکتا تھا، نہ جاگ سکتا تھا۔ مرینا نے اس کے دماغ میں آ کر حکم دیا کہ وہ گہری نیند سو جائے گا اور صبح 6 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگا۔ وہ حکم کا بندہ تھا، جلد ہی سو گیا۔ میں مرینا کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ پھر آدھے گھنٹے بعد دونوں کے اندر آئے گی اور خاموشی سے معلوم کرے گی کہ کوئی دشمن ان کے دماغوں میں چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی چھپ کر ان پر عمل کرنا چاہے گا تو وہ اس کا توڑ کرے گی۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ صبح سے خیال خوانی کرتے کرتے تھک گئی تھی اور ابھی شاید دوسرے معاملات میں صبح تک مصروف رہنا تھا۔ وہ ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تھی۔ میں نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ اس کے دماغ کو تھپکنے لگا۔ اس کی سوچ میں کہا، 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لوں گی تو ذرا تھکن اتر جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یقین تھا جب تک دماغ کو ہدایات نہیں دے گی نیند نہیں آئے گی، لیکن دماغ تو محکوم تھا۔ اس نے میرے حکم کے مطابق سلا دیا۔ وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر وارنر کے دماغ میں آیا۔ مرینا کی آواز اور لہجے میں کہا، میں تم پر دوبارہ تنویمی عمل کر رہی ہوں، تم میرے معمول بن جاؤ۔ میں اس پر عمل کرنے لگا۔ وہ جلد ہی ٹرانس میں آ گیا۔ میں نے کہا، میں نے آج سے پہلے جو تنویمی عمل تم پر کیا تھا اس عمل سے تمہیں آزاد کر رہی ہوں۔ آئندہ تم میرے معمول اور تابعدار نہیں رہو گے۔ کیا تم اس عمل سے خوش ہو؟ وہ بولا، میں بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تمہارا دماغ میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرے گا اور تم سانس روک لیا کرو گے۔ مجھے کبھی اپنے دماغ میں نہیں آنے دو گے۔ میں کبھی تمہیں اپنے دماغ میں نہیں آنے دوں گا۔ تم 3 گھنٹے تک تنویمی نیند پوری کرو گے، پھر یہاں سے حمائلہ کو لے کر فرانسیسی سفیر کی کوٹھی میں جاؤ گے۔ وہاں سے تم دونوں کو پیرس پہنچایا جائے گا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ میں نے کہا، تم پیرس میں حمائلہ کے ساتھ آزادی سے رہو گے۔ تم پر کوئی مصیبت آئے یا تم وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ اور کوئی مسئلہ تمہارے لیے درد سر بن جائے گا تو تم فرحاد علی تیمور سے رابطہ کرو گے، اور رابطے کے لیے یہ کوڈ ورڈز رہیں گے، ہمیں آزادی سے جینا ہے، ہمیں آزادی سے مرنا ہے۔ میں اس کی آئندہ زندگی کے متعلق اہم باتیں اس کے دماغ میں نقش کرانے لگا، پھر اسے 3 گھنٹے تک تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حمائلہ کے پاس آیا۔ اس کے دماغ میں بھی یہ بات نقش کرائی کہ وہ کسی کی بھی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرے گی، دماغ میں آنے والوں کو باہر نکالنے کے بعد سانس لیا کرے گی۔ اس کا دل اور دماغ 3 منٹ تک سانس روکنے کا عادی رہے گا۔ میں نے اس کے دماغ میں ضروری ہدایات نقش کرنے کے بعد اسے بھی سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ 2 گھنٹے بعد بیدار ہو کر وارنر کے ساتھ اس ہوٹل سے جانے والی تھی۔ دوسری صبح مرینا ان دونوں کے دماغوں میں بار بار آ کر ناکام واپس جانے والی تھی۔ اب یہ معلوم کرنا محال ہوتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور کس طرح آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آدمی ہمیشہ آدمی کو اپنے مفاد کے لیے غلام بناتا آیا ہے۔ اگر غلام نہ بنا سکے تو دوسرے کو کسی طرح خود سے کمتر بنا کر رکھتا ہے۔ مرینا بھی دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی آئی تھی۔ میں بھی وارنر کے ساتھ یہی کر سکتا تھا، اسے بڑی آسانی سے اپنا غلام بنا سکتا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہم کسی کو اچھے عمل کا صلہ نہیں دیتے، خدا ہمارے ذریعے نیک عامل کو صلہ دیتا ہے۔ وارنر نے سچائی سے حمائلہ سے محبت کی اور دل سے اسلام قبول کیا۔ میں خوش ہو کر اسے بے انتہا دولت دے سکتا تھا، اسے حکومت فرانس میں بہت اونچے مقام تک پہنچا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے ایسی دولت دی جو اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ میں نے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں آزادی کا تحفہ دیا تھا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں حکم ہے کہ اخلاقی اور تہذیبی پابندیوں میں رہ کر آزادی سے زندہ رہو۔ ابھی 1 منٹ پہلے سرگئی آنڈروف عرف الپا بالکل نارمل تھی، کھانے کی میز پر لذیذ کھانوں کا مزہ چکھ رہی تھی۔ اچانک پتہ چلا کہ ایک نئی مصیبت مزہ چکھا رہی ہے۔ وہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کھانے پینے کی کسی چیز میں اعصابی کمزوری کی دوا ملائی گئی ہے۔
और ये भी समझने में वक्त नहीं लगा कि मास्क मैन और दूसरे अकाबरीन उसे यूं कमज़ोर बनाकर उस पर तनवीमी अमल कराना चाहते हैं, उसके अंदर की छुपी हुई बातों को निकालना चाहते हैं। वो कुर्सी से उठ गई, खाने की मेज़ का सहारा लेकर आगे बढ़ी। वहाँ हुकूमत के जितने भी आला ओहदेदार और अहम अफसरान थे, उनकी रिहाइश गाहों में खुफिया माइक और टीवी कैमराज नस्ब थे। उन कैमराज के ज़रिए इंटेलिजेंस के जासूस एक खुफिया हॉल में बैठे टीवी स्क्रीन पर वहाँ रहने वालों की हरकत व सकनात देखते थे और उनकी बातें सुनते थे। अगरचे ये तरीका काबिल एतराज़ है, लेकिन हुकूमत के अहम अफराद को दुश्मनों से ख़तरा लाहक रहता है। कोई भी आने वाला दुश्मन उनकी रिहाइश गाहों में ख़ुद को छुपा नहीं सकता था। उसकी शनाख्त और गिरफ्तारी लाजमी हो जाती थी। सरगई अल्पा की रिहाइश गाह के हर कमरे और कॉरिडोर वगैरह में ऐसे ही खुफिया माइक और कैमराज थे। सिर्फ टॉयलेट ऐसी जगह थी जहां कैमराज और माइक खिलाफ तहजीब थे। वो कमज़ोरी को बर्दाश्त करती हुई डगमगाती हुई टॉयलेट में आ गई। वहां एक वॉल अलमारी में कुछ ज़रूरी दवाइयां थीं। उनमें कमज़ोरी का तोड़ करने और तवानाई बहाल करने वाले कैप्सूल्स थे। उसने 2 कैप्सूल निगल कर पानी पिया, फिर लुढ़खड़ाती हुई कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ी। अभी कमज़ोरी थी, मगर कमज़ोरी से लड़ने का हौसला पैदा हो गया था। पिछले दिनों उसने एक डॉक्टर के दिमाग में रहकर सुना था कि मास्क मैन, आला फौजी अफसरान और इंटेलिजेंस का चीफ उस पर शुबा कर रहे हैं। उन्हें यह तशवीश थी कि सरगई अल्पा किसी जवान मर्द में दिलचस्पी क्यों नहीं लेती है, किसी से शादी क्यों नहीं करती है। किसी ने कह दिया कि वो पारस के जहर की आदी हो गई है। अगरचे ब्रेन ऑपरेशन के बाद पिछली ज़िंदगी भूल चुकी है, उसे पारस भी याद नहीं रहा, लेकिन उसके साथ जहरीली तन्हाइयाँ जो वो गुजार चुकी है वो दिमाग में ऐसे ही रह गई हैं जैसे ऑपरेशन के बाद टेलीपैथी का इल्म बाकी रह गया है। सरगई अल्पा उसी दिन समझ गई थी कि उसका मेंटल चेकअप होगा या किसी और तरीके से दिमाग के अंदर छुपी हुई बातें मालूम की जाएंगी। अब वो वक्त आ गया था। उसे जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरियों में मुब्तला किया गया था ताकि तनवीमी अमल के ज़रिए उसके दिमाग की गहराइयों में छुपे हुए पारस के जहर को दरियाफ्त किया जाए। वो बिस्तर पर चारों शाने चित पड़ी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला। एक दुबला पतला लांबे कद का शख्स नजर आया। वो सफ़ेद लिबास में मुल्कुल मौत लग रहा था, जैसे सरगई की रूह कब्ज़ करने आया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर के करीब आया। सरगई अल्पा उसे बेबसी से देख रही थी। वो झुककर उसके शाने को थपक कर बोला, ईजी बेबी ईजी, तुम्हें मेरी ज़ात से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो, आराम से लेटी रहो और मेरी आंखों में देखती रहो। उसने देखा, आमिल की बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में मकनातीसी कशिश थी। कोई और होता तो उन आंखों में देखते ही सहरज़दा हो जाता, लेकिन सरगई अल्पा की दिमागी तवानाई बहाल हो चुकी थी। वो खामोशी से अपने दिमाग को हिदायत दे रही थी कि दिमाग आमिल से मुतासिर नहीं होगा। वो अपनी भारी भरकम आवाज़ में बोल रहा था। आवाज़ में ऐसी गूंज और धीमी धीमी सी गरज थी कि सीधी दिल में उतर जाती थी। सरगई अल्पा उसे देख रही थी और यूं निढाल हो रही थी जैसे उसके सामने दिल, दिमाग और अपने तमाम हौसले हारती जा रही हो। वो कह रहा था, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, तुम खुली आंखों से देखोगी। बंद आंखों के पीछे तुम्हारे दिमाग में मेरा चेहरा रहेगा। तुम्हारे कान दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुनेंगे। तुम सिर्फ मेरे अहकामात सुनोगी, उन्हें जहन में नक्श करोगी और मेरे सवालों के दुरुस्त जवाबात दोगी। सरगई अल्पा ने एक मामूला की हैसियत से वादा किया कि वो तमाम अहकामात की तामील करती रहेगी। उसकी आंखें बंद हो गई थीं, सिर्फ कान खुले थे। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, सरगई ऑनड्रोव। उसने हुक्म दिया, नहीं, तुम्हारा नाम अल्पा बेकर है। वो बोली, मेरा नाम अल्पा बेकर है। नहीं, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम गुमनाम हो। मैं गुमनाम हूँ। क्या तुम मेरे सवालों के दुरुस्त जवाबात दोगी? मैं तुम्हारे सवालों के दुरुस्त जवाबात दूंगी। क्या तुम पारस को जानती हो? एक पारस को जानती हूँ जो फरहाद अली तैमूर का बेटा है। तुम उसे कैसे जानती हो? यहाँ मुझे फरहाद और उसके फैमिली मेम्बरान के रिकॉर्ड्स पढ़ने के लिए दिए गए। मैंने ऑडियो के ज़रिए उनकी आवाज़ें सुनी और वीडियो के ज़रिए उन्हें चलते फिरते एक्शन में देखा। उनमें ही वो पारस भी नज़र आता रहा। तुम पारस में कोई गैर मामूली कशिश महसूस करती हो? मैं ज़ाती तौर पर कोई कशिश महसूस नहीं करती। इसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि जहरीलेपन के बायस वो औरतों के लिए गैर मामूली हो गया है, लेकिन स्क्रीन पर देखकर मुझे उसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। तुम जवान हो, कोई जवान मर्द तुम्हें मुतासिर करता होगा।
अभी तक किसी ने मुतासिर नहीं किया। आइंदा की बात मैं नहीं कह सकती। क्या तुम अपनी पिछली ज़िंदगी के मुतालिक सोचती हो? हाँ, अक्सर सोचती हूँ। पता नहीं माजी में कैसी ज़िंदगी गुजारी है। मुझे बताया गया है कि मैं यतीम लड़की थी। मुझे सरकारी हॉस्टल में रखकर तालीम और तरबियत दी गई। इसका मतलब है मेरा अपना कोई नहीं था। मोहब्बत का कोई रिश्ता ना पहले था और ना अब है। ये सोचकर बहुत दुख होता है। तुम्हें नई ज़िंदगी मिली है, नई मोहब्बत करो, किसी को दिल दो, किसी से दिल लो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं कितने ही नौजवान और काबिल मर्दों से मिलती रहती हूँ और सबकी ही कदर करती हूँ, लेकिन किसी पर दिल नहीं आता। ये बताओ तुम्हें किन खूबियों का हामिल नौजवान पसंद आएगा? वो आमिल घुमा फिरा कर सरगई के अंदर से वो बात निकालना चाहता था जिसे मास्क मैन और दूसरे अकाबरीन सुनने के लिए बेताब थे। उनके दिमागों में ये बात फंसी हुई थी कि सरगई के लाशऊर में पारस की जहरीली कशिश छुपी रह गई है और वो कशिश उसे किसी दूसरे जवान की तरफ माइल नहीं होने देगी। सरगई भी हर तरह के सवाल से निमटने के लिए दिमागी तौर पर पूरी तरह हाजिर थी। अगर आमिल से सहरज़दा होती तो शायद उसके अंदर से छुपा हुआ पारस निकल आता और ख़ुद उसे खबर ना होती। उसने होशो हवास में रहकर जवाब दिया, पहले तो मैं दुनिया में इतना नाम पैदा करना चाहती हूँ कि मेरे सामने फिर किसी का चिराग ना जले। जिसके चिराग की लौ मुझसे ऊंची होगी मैं उसे जीवन साथी के लिए पसंद करूँगी। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम पैदा करने के लिए एक उम्र चाहिए। तुम्हारी शादी की उम्र गुजर जाएगी। गुजर जाए तो अच्छा है। मैं शादी के हवाले से एक भयानक ख्वाब देखती हूँ। बेदार होने के बाद सोचती हूँ अच्छा है शादी का मामला इसी बहाने टलता रहे। तुम क्या ख्वाब देखती हो? जब चांद की पूरी तारीख होती है, आसमान पर 14वीं का चांद होता है, तो शायर उसमें ख्याली महबूबा की सूरत देखते हैं और शायरी करते हैं। ऐसी रातों में आशिक दिल हारते हैं। मैं हौसला हार जाती हूँ। उस रात ख्वाब में देखती हूँ कि कोई मेरा जीवन साथी है। वो मुझे दुल्हन बनाकर कबूल करने के लिए करीब आता है। अचानक खून की बारिश होती है, फिर वो मेरे सामने मुर्दा नजर आता है। ऐसा ख्वाब तुमने एक बार देखा होगा? नहीं, कई बार देखा है और चांद की 14 तारीख को देखा है। यही तो परेशानी की बात है कि बिल्कुल वही ख्वाब बार बार क्यों आता है। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या गुजरा होगा या तुमने कोई डरावनी फिल्म देखी होगी जिसने तुम्हें बुरी तरह मुतासिर किया है। ऐसा वाक़या जिससे दिमाग मुतासिर होता है वो ख्वाब बनकर खुद को आदमी के अंदर दोहराता है। मैं हुक्म देता हूँ कि उस ख्वाब को और ऐसे वाक़ये को भूल जाओ। मैं भूल जाऊँगी। सोने से पहले दिमाग को हिदायत दोगी कि तुम्हारे अंदर कोई नागवार ख्वाब पैदा ना हो। मैं सोने से पहले दिमाग को हिदायत दूंगी कि मुझे कोई नागवार ख्वाब ना आए। मैं हुक्म देता हूँ कि तुम मॉस्को ही में किसी शख्स से मोहब्बत करोगी और उससे शादी करोगी। 24 घंटे के अंदर किसी का इंतखाब और अगले 24 घंटों के अंदर शादी करोगी। उसने वादा किया कि वो 48 घंटों के अंदर किसी शख्स का इंतखाब करके शादी करेगी। उसने हुक्म दिया, तुम तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद भूल जाओगी कि कोई तुम्हारे कमरे में आया था और उसने तुम पर अमल किया था, लेकिन इस अमल के असर में रहोगी और हमेशा मेरी मामूला और ताबेदार बन कर रहा करोगी। उसने आंखें बंद कर लीं। आमिल ने समझा वो हुक्म की तामील करती हुई सो गई है। वो दबे कदमों वहां से चला गया, दरवाजे को बंद कर दिया। सरगई अल्पा ने फिर भी आंखें बंद रखीं। बज़ाहिर कोई उसके फ्रॉड को देखने समझने वाला नहीं था, लेकिन कमरे में खुफिया कैमरास की आंख उसे देख रही थी और मास्क मैन वगैरह को दिखा रही थी। इसलिए वो 2 घंटे तक तनवीमी नींद जाहिर करने का इरादा कर चुकी थी। एक खुफिया इजलास में मास्क मैन, आला हुकाम, फौजी अफसरान, 2 डॉक्टर और जहनी पेचीदगियों को समझने वाले माहिरीन बैठे थे और एक स्क्रीन पर सरगई अल्पा को देख रहे थे। उस पर तनवीमी अमल हो चुका था और अब वो तनवीमी नींद में डूब गई थी। मास्क मैन ने एक मातहत अफसर से कहा, टीवी बंद कर दो। टीवी को ऑफ कर दिया गया। एक आला फौजी अफसर ने डॉक्टरों और माहिरीन से कहा, आप लोगों ने देखा और सुना है कि सरगई मामूला बनने के बाद आमिल के सवालात के क्या जवाबात दे रही थी। एक डॉक्टर ने कहा, उसने जो जो जवाब दिया है उसकी रोशनी में ये मालूम करना ज़रूरी है कि पिछली ज़िंदगी में उसे कौन सा वाक़या ऐसा पेश आया था कि वो आज ख्वाब की सूरत में याद रह गया है। एक माहिर ने कहा, किसी के दिमाग में छुपी हुई बातों को मालूम करने के 2 ही रास्ते हैं, एक टेलीपैथी और दूसरा तनवीमी अमल। अभी एक अमल ने जिस हद तक हमें बताया है उससे ज़्यादा मालूम करना मुमकिन नहीं। दूसरे माहिर ने कहा, इस अमल से एक फ़ायदा हुआ, आमिल ने उसके दिमाग से वो ख्वाब मिटा दिया है। वो जल्द ही किसी को जीवन साथी बना लेगी।
मास्क मैन ने कहा। एक बात फिर भी खटकती है, सरगई के ब्रेन ऑपरेशन में कुछ खामियां रह गई हैं। एक सोचने और समझने का नुक्ता है, जब एक वाकया उसके दिमाग में ख्वाब बनकर रह गया तो पारस भी ख्वाब ख्याल की सूरत में कभी उसके अंदर से उभर सकता है। माहिरीन ने ताइद में सर हिलाया। मास्क मैन ने कहा, ऑपरेशन की खामियों से ये अंदेशा भी है कि उसे कभी हादसाती तौर पर पिछली जिंदगी भी याद आ सकती है। आला फौजी अफसर ने कहा, मुश्किल ये है कि उसका ब्रेन ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर मर चुका है, वरना हमें उससे खामियों और कोताहियों का इल्म होता। डॉक्टर ने कहा, और ये ब्रेन ऑपरेशन बच्चों का खेल नहीं है। पहले ऑपरेशन की खामियों को दूर करने के लिए दूसरा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। आला अफसर ने कहा, हम इसे सख्त निगरानी में रखेंगे। जब दूसरा टेलीपैथी जानने वाला एवन रास का ऑपरेशन के बाद हमारा वफादार बन जाएगा तो वो चुपचाप सरगई के दिमाग में जाता रहेगा और अंदर से उसकी तब्दीलियों को समझता रहेगा। हमें उसके हर बदलते हुए मिजाज और इरादे से आगाह करता रहेगा। सरगई अल्पा अपने कमरे में आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी हुई थी और ख्याल ख्वानी के जरिए एक डॉक्टर के दिमाग में पहुंची हुई थी। वो ऐसे इजलासों में अपने बड़ों की बेतमादी मालूम करने के लिए किसी डॉक्टर या किसी मातहत अफसर के दिमाग में छुप कर रहती थी। कुछ अरसे से ऐसे इजलास में अपने अकाबरीन की बातें सुनकर उसके ख्यालात बदल रहे थे। वो उन्हें आला ओहदेदारान और सीनियर अफसरान मानकर उनकी बड़ी इज्जत किया करती थी। आज ये साबित हो गया था कि वो उसे पाबंद बनाने के लिए तनवीमी अमल की जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जिस टेलीपैथी जानने वाले एवन रास्का को पकड़ कर लाई थी, उस नए आने वाले को उसके दिमाग में घुसा कर उसके ज़ाती मामलात की जासूसी कराना चाहते थे। औरत अपने चोर ख्यालात और जज्बात अपने चाहने वाले से भी छुपाती है। सरगई अल्पा ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप बागी होती जा रही थी। बागियाना तब्दीलियों के दौरान ये बात ज़्यादा चुभती थी कि उसके अकाबरीन उस पर भरोसा नहीं करते। उन्हें यह धड़का लगा रहता है कि दुश्मन उसे बहका कर उनसे छीन कर ले जाएगा, और बहकाने वाले एक ही दुश्मन का नाम ज़्यादा आता था और वो नाम पारस का था। उन्होंने अपने शुकूक व शुबात से ये साबित कर दिया था कि पारस ने उसकी पिछली ज़िंदगी में कोई बहुत अहम रोल अदा किया है। वो अपनी हमाकतों से उस नौजवान को एक खुद फरामोश लड़की के जहन में नक्श कर रहे थे। वो रह रह कर सोचती थी, क्या पारस को मेरी ज़िंदगी से दूर करने के लिए मेरी पिछली ज़िंदगी भुलाई गई है? उसे बताया गया कि कार के एक हादसे में उसे दिमागी चोट लगी थी, उसका ऑपरेशन करना पड़ा था। ऑपरेशन के बाद वो बच गई, लेकिन पिछली ज़िंदगी उसके दिमाग से गुम हो गई। और अब वो यकीन से कह सकती थी कि उसकी यादाश्त गुम नहीं हुई बल्कि गुम कर दी गई। उसकी एक मिसाल सामने थी। टेलीपैथी जानने वाले एवन रास्का का भी ब्रेन ऑपरेशन किया जाने वाला था, जबकि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन यहाँ के हुकाम और अकाबरीन उसे अपना वफादार बनाए रखने के लिए उसका ब्रेन वॉश करने वाले थे। पिछली ज़िंदगी भुलाकर उसे अपना गुलाम और वफादार बनाने वाले थे। सरगई अल्पा को यकीन हो गया, बिल्कुल यही उसके साथ हो चुका है। वहाँ एक सरकारी क्लब था जहाँ आला हुकाम और निहायत अहम ओहदेदारान तफरीक के लिए कुछ वक्त गुजारने आते थे। किसी छोटे ओहदेदार को या बड़ी से बड़ी गैर सरकारी शख्सियत को क्लब में कदम रखने की इजाज़त नहीं थी। उस रात सरगई अल्पा वहाँ आई। एक आला अफसर ने उसे हैरानी से देखकर पूछा, तुम और यहाँ? तुम तो बड़ी खुश्क मिजाज हो, किसी तफरीह या खेल में हिस्सा नहीं लेती हो, किसी से दोस्ती नहीं करती हो, फिर यहाँ क्या करोगी? वो बोली, यहाँ आई हूँ तो दोस्ती भी कर लूँगी। दूसरे अफसर ने पूछा, क्या वाकई दोस्ती करोगी? वाकई, इसी इरादे से आई हूँ। उसकी ये बात जहाँ जहाँ तक पहुँची वहाँ तक लोगों ने खुश होकर तालियां बजाईं। क्लब के हर बड़े आदमी को मालूम होता गया कि वो अपनी ज़िंदगी का एक हीरो पसंद करने आई है। मास्क मैन और वो ख़ास ओहदेदारान जो उस पर होने वाले तनवीमी अमल के मुतल्लिक जानते थे, ये देख कर मुतमईन हो रहे थे कि आमिल ने बड़ा कामयाब अमल किया है। अब वो इस अमल के ज़ेरे असर रह कर 48 घंटों के अंदर किसी से शादी करने के लिए बेचैन हो गई है। उस क्लब में नौजवान अफसर 2-4 ही थे, बाकी सब 40 बरस से ऊपर के थे। उन अधेड़ उम्र के ओहदेदारों ने आईना देखा, कंघी की और अपने सफ़ेद बालों को किसी हद तक छुपाने की कोशिशें शुरू कर दी। एक अजीब तमाशा शुरू हो गया था। हर एक की ख्वाहिश थी कि वो सरगई की आंखों में समा जाए और दिल में उतर जाए, क्योंकि दिल में जगह बनाने का ज़्यादा वक्त नहीं था। वो मोहब्बत और शादी फ़ौरन ही करना चाहती थी। वो उलझन में पड़ गई। आला ओहदेदार उसे डांस करने की पेशकश कर रहे थे।
कोई कॉफ़ी पिलाना चाहता था, कोई खाने की मेज़ पर बुला रहा था। जिनकी शादियां हो चुकी थीं और बच्चे जवान हो रहे थे, वो भी चांसेस ले रहे थे। वो टेलीपैथी जानने वाली अलादीन का तिलिस्मी चिराग थी, जिसके हाथ आ जाती उसे अपनी ज़ात में सुपर पावर बना देती। वहाँ मैदान जंग के निहायत तजुर्बाकार फौजी थे और सियासत की बिसात पर शातिराना चाल चलने वाले हुक्मरान थे। फौजी अफसरान को कारनामे अंजाम देने पर बड़े बड़े एजाज़ात और इनामात हासिल होते थे। सियासतदानों को कामयाबी नसीब हो तो इक़्तिदार हासिल होता था, लेकिन उन सबसे बड़ा एजाज़ और इनाम सरगई का हुसूल था। जो उसे हासिल कर लेता तो दुनिया के सारे इनाम व इकराम और तमाम इज़्ज़त व शोहरत उसका मुकद्दर बन जाती। उसने सोचा था शादी कोई मसला नहीं है, किसी को भी पकड़ेगी और उसे शादी करके साबित कर देगी कि तनवीमी अमल के मुताबिक वो अपने आमिल के अहकामात पर अमल करती जा रही है। लेकिन ये मसला गंभीर होता जा रहा था। वो एक अनार थी और 100 बीमार थे। हर बड़ा ओहदेदार उसे अलग ले जाता था और समझाता, खूब सोच समझ कर इंतखाब करो। तुम बेशक ज़हीन हो मगर अभी कमसिन हो। तुम्हारी ज़िंदगी में किसी नौजवान को नहीं, खासी उम्र वाले शख्स को आना चाहिए, ताकि वो तुम्हें ज़माने की ऊंच नीच से आगाह करता रहे, तुम्हें फूल की तरह रखे और तुम्हारे मिजाज से हम आहंग होता रहे। और तुम तो मुझे जानती हो, ये तमाम खूबियाँ मुझ में हैं। एक आला हाकिम ने उससे कहा, मैंने सियासत की दुनिया में बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। कोई मेरे मुकाबले का सियासतदान नहीं। मुझे हर हुकूमत में किसी न किसी इलाके का हाकिम बनाया जाता है। अगर तुम मेरी शरीक हयात बन जाओ तो हम इस मुल्क में सारी ज़िंदगी हुकूमत करते रहेंगे। एक और ओहदेदार उसे एक तरफ ले जाकर बोला, मुझे इक़्तिदार और बरतरी की ख्वाहिश नहीं। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से ही दिल में तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ। मेरी मोहब्बत बढ़ते बढ़ते इबादत बन गई है। मुझे तुम्हारी टेलीपैथी से नहीं, तुम्हारी ज़ात से लगाव है। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। वो एक एक के मशवरे सुन रही थी। बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी लेकिन अंदर उलझ गई थी। वहाँ इतने बड़े लोग थे कि किसी एक को पसंद करके बाकी तमाम को नाराज़ नहीं कर सकती थी। अगर किसी मेजर को पसंद करती तो उससे ऊंचे अफसर कर्नल की इंसल्ट होती। इसी तरह किसी एक हाकिम का इंतखाब करती तो दूसरे हुक्काम अपनी तौहीन महसूस करते, और वो किसी को किसी से कमतर बनाने का इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती थी। आखिर उसने स्टेज पर आकर अपने हाथ में एक माइक लिया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जिनके साथ बीवियाँ और महबूबाएँ थीं, वो धड़कते हुए दिल से ये सुनना चाहती थीं कि सरगई ने उनके शौहर या महबूब को पसंद नहीं किया है। वो बोली, मुझे खुशी है कि आप सब मेरी शादी के मामले में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी ले रहे हैं। आपने इस सिलसिले में निहायत मुफीद मशवरे दिए, खुसूसन ये समझाया है कि मुझे खूब सोच समझ कर जीवन साथी का इंतखाब करना चाहिए। एक ने कहा, इसका मतलब है अभी सोचोगी, आज किसी का इंतखाब नहीं करोगी? अभी इसी वक्त इंतखाब होगा और 24 घंटों के अंदर शादी करूंगी। सब लोग तालियां बजाने लगे। एक ने सवाल किया, तुम शादी के नाम से कतराने लगती थी, अचानक ये तब्दीली कैसी है कि चट मंगनी और पट ब्याह के लिए राजी हो गई हो? पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आज सुबह से शादी के लिए बेचैन हो रही हूँ। ऐसा लगता है अगर मैं कल शाम तक शादी नहीं करूंगी तो कवारी मर जाऊंगी। कई लोगों ने इस खुशी में तालियां बजाईं कि आज ही खुशबख्ती का फैसला होगा। फिर उन्हें हमाकत का एहसास हुआ कि वो सरगई के कवारी मर जाने की बात पर तालियां बजा रहे थे। एक ने कहा, शादी की ऐसी ही जल्दी है तो कोई भी चलेगा, प्लीज़ जल्दी बताओ वो कोई भी कौन है? वो बोली, मैं इसी कश्मकश में हूँ। आप सब मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हैं। आप में से हर एक बेहतरीन जीवन साथी साबित हो सकता है। मैं आप में से किसी एक को पसंद करके बाकी को नापसंद नहीं करना चाहती। कई हजरात इसे अना का मसला बना लेंगे, कई हजरात अपनी तौहीन महसूस करेंगे। सब लोग ताइद में सरगोशियां करने लगे कि यह दुरुस्त है, नाकाम होने वाले की इंसल्ट होगी। सरगई मुश्किल में पड़ गई है कि वो अपने जीवन साथी का कैसे इंतखाब करेगी। सब ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। एक ने पूछा, हम किस तरह इंतखाब करें? सीधी सी बात है, आप यहाँ अपने अपने नाम की पर्चियाँ डालें और मेरे नाम की लॉटरी निकालें। जिसकी पर्ची मेरे नाम के साथ निकलेगी वही मेरा जीवन साथी होगा। चंद सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। फिर वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ कहने लगे। हर शख्स को खुशफहमी थी कि सरगई उसे पसंद करेगी। लॉटरी का मामला मशकूक था। तकदीर हर एक से दोस्ती नहीं कर सकती थी। इसके बरक्स शादीशुदा हजरात को और बूढ़ों को यकीन नहीं था कि
कि सरगई उन्हें जीवन साथी बनाएगी, लेकिन लॉटरी के जरिए उन्हें उम्मीद थी कि सरगई का नाम उसकी पर्ची के साथ निकल सकता है। कुछ हिमायत करने लगे, कुछ एतराज करने लगे। वो बोली, मैं वाज़े अल्फाज में कहती हूँ कि एक को पसंद करके दूसरों का दिल नहीं तोड़ूंगी। मेरा और आपका फैसला तकदीर करेगी। कोई मुझसे फैसले की तवक्को ना करे। अगर आप राज़ी नहीं होंगे तो मैं यहाँ की ऊंची शख्सियात के दरमियान से निकलकर रास्ता चलते हुए किसी शख्स को पकड़कर शादी कर लूँगी। कोई ये नहीं चाहता था कि वो यहाँ से बाहर जाकर किसी और को पसंद करे, लिहाजा वो लॉटरी सिस्टम के लिए राज़ी हो गए। इसके लिए इंतज़ामात होने लगे। बड़ी गहमा गहमी थी। खुश्क ज़िंदगी गुजारने वाले हुक्मरानों और ओहदेदारों में एक नई जवानी की रूह दौड़ गई थी। एक बड़े बॉक्स में तमाम हजरात के नाम की पर्चियां लिखकर डाली जा रही थीं। दूसरे बॉक्स की पर्चियों पर 0 लिखा जा रहा था। सिर्फ एक पर्ची पर सरगई ऑनड्रोव का नाम था। एक ने कहा, सरगई के नाम की 3 पर्चियां डाली जाएं ताकि वो 3 आदमियों के नाम से निकले। पहला नाम जिस शख्स का होगा, हो सकता है वो अचानक नागुज़ीर वजूहात की बिना पर शादी ना कर सके, तो शादी का हकदार दूसरा शख्स होगा जिसका नाम दूसरी बार सरगई के साथ आएगा। इस तरह दूसरा भी किसी मजबूरी के बायस 24 घंटों के अंदर शादी ना कर सके तो तीसरा खुशनसीब शादी कर लेगा। ये बचगाना मशवरा था, लेकिन इस तरीक़ाकार से कोई एक खुशनसीब ना होता बल्कि मज़ीद 2 खुशनसीब कतार में खड़े रहते। ये मायूस होने वालों के लिए उम्मीद अफजा तरीका था, इसलिए सब ने तायद की। सरगई के नाम की 3 पर्चियां डालकर दोनों डब्बों को खूब हिलाया गया। फिर क्लब के एक बूढ़े मुलाजिम को बुलाकर दोनों डब्बों में से एक एक पर्ची निकालते रहने की हिदायत की गई। यह ऐसा मरहला था कि सभी के अंदर तजस्सुस भर गया था। बॉक्स में से जब भी एक पर्ची निकलती और वो मुलाजिम उसे पढ़ता था, दूसरी पर्ची 0 की निकलती थी। सस्पेंस और बढ़ जाता था कि शायद अगली पर्ची सरगई के नाम के साथ निकलेगी और वो पर्ची अपने नाम के साथ होगी। जिनके नामों के साथ 0 निकल रहा था वो नागवारी से मुंह बनाकर बार में जा रहे थे और शराब से गम गलत कर रहे थे। लॉटरी का सिलसिला देर तक जारी रहा। 3 खुशनसीबों के नाम निकल आए। पहला खुशनसीब मुस्कुराता हुआ स्टेज पर सरगई के पास आया, फिर हाथ में माइक लेकर बोला, आज मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी तक शादी नहीं की थी, लिहाजा इस बात का चांस नहीं है कि मेरी कोई साबिका बीवी आकर शादी से मना करेगी। मैं मिस सरगई की ख्वाहिश के मुताबिक 24 घंटे गुजरने से पहले शादी कर लूँगा। वो मुस्कुरा कर बोली, हमारी शादी कल शाम 4 बजे कैथोलिक चर्च में होगी। मैं आप सबको शादी में शरीक होने की दावत देती हूँ। नाकाम रहने वालों ने बड़ी बेदिली से तालियां बजाईं और उसे शादी की पेशगी मुबारकबाद दी। लॉटरी में दूसरा खुशनसीब मास्क मैन और तीसरा फौज का कर्नल था। वो दोनों बड़ी नागवारी से और सोचती हुई नज़रों से पहले खुशनसीब को देख रहे थे। सोच यही हो सकती थी कि पहला खुशनसीब 24 घंटे के लिए ऐसा बीमार हो जाए कि बिस्तर से उठ ना सके या उसे मौत आ जाए। मास्क मैन की बद्दुआ उस एक खुशनसीब के लिए थी और कर्नल 2 खुशनसीबों की बीमारी या मौत का मुतमन्नी था। दूसरे दिन 4 बजे शादी हो गई। दुल्हा ने शानदार दावत का एहतमाम किया था। शराब का भी इंतज़ाम था। जो बड़े ओहदेदार योगा के माहिर थे वो हर तकरीब में शराब से परहेज़ करते थे। जहां मास्क मैन और आला हुक्काम होते थे, उस तकरीब में छोटे ओहदेदारों और अफसरों को आने की इजाज़त नहीं होती थी। खाने की दावत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ी खामोशी थी। कोई किसी से ना बोल रहा था और ना ही पेट भर के खा रहा था। यूं लगता था सब के सब किसी की मैयत उठाने आए हों। वो सब ऐसे हारे हुए जवारी थे जो फिर से जीतने के लिए दोबारा बाजी शुरू नहीं कर सकते थे, लेकिन मुकद्दर मेहरबान हो तो दूसरी बाजी शुरू होते देर नहीं लगती। उस तकरीब में दुल्हा ने सरगई से कहा, अभी तक हमारी तस्वीर मेहमानों के साथ उतरती रही हैं। आओ एक तस्वीर मेरे बाजुओं में बनवा लो। कम ऑन फोटोग्राफर। वो तस्वीर के लिए सरगई के करीब जाने लगा। उसी वक्त एक फौजी अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर उसे निशाने पर लेते हुए कहा, खबरदार, सरगई के करीब ना जाना। ये मेरी है और सिर्फ मेरी है। मैं किसी को सरगई के करीब जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही उसने फायर किया। गोली दुल्हा के सीने में लगी। वो उछलकर जमीन पर जा गिरा। पहले चंद लम्हों तक किसी की समझ में नहीं आया कि ये अचानक क्या हो गया है। जब समझ में आया तो देर हो चुकी थी। उस भागने वाले कातिल को कर्नल ने गोली मार दी। ये सारा खेल टेलीपैथी का था। सरगई ने बहुत पहले ही इस फौजी अफसर को ताड़ लिया था कि उसके दिमाग में जगह मिल सकती है।
پھر جب دلہا نے تصویر کے بہانے سب کے سامنے دلہن کے قریب آنا چاہا تو دلہن نے فوجی افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے گولی مار دی۔ پھر جان بوجھ کر اس قاتل افسر کو ماسک مین اور کرنل کے سامنے سے دوڑتے ہوئے وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کیا۔ ماسک مین قتل ہونے والے دلہا کی طرف جا رہا تھا۔ کرنل نے قاتل کو پہلے رک جانے کی وارننگ دی، پھر ایک سیکیورٹی گارڈ کی رائفل لے کر اسے گولی مار دی۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔